Yes, student, we have started the most important topic, that is respiratory system in human. In human respiratory system, we have started the study of different parts of respiratory system. Okay. Now see here, the main respiratory organ in human being is the lung. Okay, lung is the main respiratory organ. Then our respiratory system, it is divided into the conducting zone and the respiratory zone, or we can say the exchange zone. The human respiratory system, we divide it into two important parts, the conducting zone and the exchange zone. And this conducting zone and exchange zone comprise different parts. What are these parts? Now, write down the figure. The parts of conducting zones and part of respiratory zone, or we can say the exchange zone. Nasal chamber, now this part is the external layers. We can see it as the external layer, or you can say it as the nostril. Nostril. The pair of nostril is in contact with the environment. The environment के contact में है. Through these inhaled or exhaled gases can be passing through. Okay, so nostril, external layer. Then see here the different parts of conducting zone. Conducting zone, different parts of conducting zones are: number one, the external layers. The next one, this part comprising here the three different regions of nasal canal. This portion we can say as the nasal canal. And this nasal canal is consist of three different, functionally nasal canal is divided into three different regions. What are they? These are the vestibule region, vestibule, vestibule, that is the part where the sebaceous glands as well as the hairy structures present. That part is the vestibular part. Then respiratory part, or we can say the conditioner part. Okay, respiratory part or the conditioner part, conditioner zone. Then this one is known as the sensory region of the nasal canal, or we can say the olfactory region. Olfactory region. The Snadian membrane, that is the neurosensory membrane, cover these nasal canal. Now these are these are the different parts of nasal canal. The conducting zone, the first part is external nape or nostril. Then second portion is the nasal chamber or nasal canal. Then this part that opens into the pharynx region, it is known as internal nape. Internal nape. Internal nape. Then pharynx, internal nape,
Fourth one, oropharynx, nasopharynx, okay, as well as laryngopharynx, okay. Pharynx, especially the laryngopharynx region. Laryngopharynx, fourth portion. Then through this glottis, through the glottis, then it enter into the larynx part. Air enter into the larynx part through glottis. Now dorsally, this is the blade, the opening of food conducting pipe. That is food pipe. We can say that is esophagus. Okay, then air pipe, that is, this one is the air pipe, tracheal pipe, trachea, wind pipe. Okay, and this portion is of larynx region, the sound box. Larynx, that is the sound box of our body. Then larynx, then it continuously it is continuously extended as the trachea. Then this trachea in thoracic cavity, this trachea when entering thoracic cavity, it is divided into two bronchi, trachea divided into left bronchus and right bronchus. We can say the primary bronchus. Primary bronchus divided into secondary bronchus. Secondary bronchus. Then secondary into tertiary bronchus. Then lastly, this tertiary bronchus, it is divided into tertiary terminal bronchioles. Terminal bronchioles. This part from this primary bronchus up to this terminal bronchiole, it is known as bronchial tree. It is known as bronchial tree. Bronchial tree. And the region of conducting zone, it comprising from external nares up to the terminal bronchiole. It is known as the conducting zone. इसे हम conducting zone में comprise करेंगे. That I am going to draw here. ठीक है? See, next one. अगला part. These are diaphragm. Okay, then tertiary bronchioles. It divides and form. Okay, I'm drawing here only the divisions of bronchial trees of right bronchus, primary bronchus, right primary bronchus. Then terminal bronchiole divides into respiratory bronchiole.
then it directly opens into the sac or cavity of alveolus known as atrium through the alveolar duct. Alveolar duct. That atrium, this is the cavity of alveolus. Means these form the regions of these terminals here. Respiratory bronchial up to this alveolus, it is the region of exchange zone. Exchange zone of respiratory area. Now these are the two important zones of human respiratory system. Next point. Now one by one we'll study about all this part one by one. Okay. So first one part, external layers. These are the two openings that directly present in contact with the environmental air. Okay. Then that part is our the nostril. We have two nostrils. We are dirhinous. We are dirhinous. The external openings of nose. We have two openings. Therefore, we are dirhinous. In some animals, the single opening is present outside. That is known as the single nostril they have. That is known as monorhynchus or monorhinous. We are dirhinchus. The next one part. These external opening here, when it comes inside the cavity, then it forms a nasal canal. Nasal canal, functionally, we divide this nasal canal into three different functional zones. Okay, two different functional zones. Before that, we should study about the nose. See here, our nose, this portion of our nose, okay, that form the respiratory area, that form the part of respiratory area. It is formed by the fusion of three different types of the bones. Okay, the nasal bone, the maxillary bone, and the ethmoid bone. How many bones they form these? The region of respiration, the region of respiratory canal. In our nasal canal, three different types of bone. कौन-कौन से bone है? Nasal bone, maxilla, maxillary bone, and ethmoid bone. These three bones, they form this portion, that is the region of respiratory area in our nasal region, nose region. ये जो nose का region है, यहाँ पर तीन different bones के fusion से ये nasal canal का area बनाया जाता है. Especially ये nose का region specially हम आपको बता रहे हैं, nose के पास. Okay, these three different bones they form the nasal area, that part take part in conducting zone. The next one is this nasal canal. It is consist of three different, functionally divided into three different regions. कौन-कौन से? Vestibular part, respiratory or conditioner region, and sensory region, neurosensory region, or olfactory region. What is this? ये क्या चीज है? See here. Now, vestibule. अगर हम इस वेस्टिबल को देखते हैं, then this vestibule it bears the sebaceous gland, means the sebum secreting gland. Sebaceous gland and hairy structure, it is present at this region that is known as vestibule. इसे हम क्या कहते हैं? वेस्टिबल कहते हैं. इसका मतलब क्या है? ये जो नोज का जो एरिया है, it is formed by enfolding our body surface. हमारा जो बॉडी का जो सरफेस है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, द इंटरनल फोल्डिंग ऑफ आवर बॉडी लेयर इट फॉर्म दिस कैविटी ऑफ आवर नोज.
ये कैसे प्रूव होता है? ये इस वजह से प्रूव होता है क्योंकि हमारे बॉडी के सरफेस पर भी हेयर्स है, सेबेशियस ग्लैंड है, और यहाँ पर इस वेस्टिबुलर रीजन में भी क्या है? हेयर्स है, सेबेशियस ग्लैंड है। इसका मतलब क्या प्रूव होता है? इन्वेजिनेशन हुआ है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। गेटिंग दिस पॉइंट? So this vestibular region, it contains hairy structures, and these hairy structures and sebum, what they do? The sebum, it secrete the, yes, the sebaceous gland, they secrete the sebum, the waxy substance, and this waxy substance, it stick the soil particles present in inhaled air. ओके, जो भी हम एयर इनहेल करते हैं, उस इनहेल एयर में जो भी सॉइल पार्टिकल्स है, माइन्यूट पार्टिकल्स है, उन सभी को स्टिक करने का काम सेबम करता है। साथ ही साथ जो हेयर्स होते हैं, उस हेयर के द्वारा जो इनहेल एयर है वो फिल्टर होकर आगे पास होती है कंडीशनर जोन और रेस्पिरेटरी जोन। It is highly vascular region. Here we can see the very thin skin is present in this region. Highly vascular and thin region it is. ये जो रीजन है, what does it do? ये क्या करता है? ये उस एयर का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने के लिए आगे उसे बढ़ाता है। ठीक है, इट इज हाईली वेस्कुलर रीजन। द नेक्स्ट वन इज दिस olfactory region. Now in this nasal canal we can see the three different nasal conchae. Okay, internal, this nasal canal, it contain nasal, yes, it contain infranasal conchae. क्या होता है? infranasal conchae. What is this? These are known as terminal bones. इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल बोन्स कहते हैं। ओके, ये तीन डिफरेंट तरह के सर्कुलेटिंग चैनल्स बनाते हैं। ओके, सी these infranasal bone, they form the wavy channels by their fusing. Then superior nasal terminal, then median, then inferior nasal terminals. ये जो तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक तरह का एक एयर का सर्कुलेटिंग का एरिया बनाते हैं। These terminal, they increase the surface area for the circulation of inhaled air so that their temperature get adjusted with our body. The air that comes here in this nasal canal, it becomes warm. ये वार्म हो जाती है हमारे बॉडी के टेम्परेचर के। क्यों? क्योंकि कैसे होता है ये जो इंफ्रानेसल कॉन्चे होते हैं, यस, ये जो टर्मिनल बोन्स है, ये इंटरनली एक स्पाइरल कैविटी बनाते हैं। ओके, उस रेडी कैविटी से जब ये पास होते हैं तब उनका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से। ओके, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, एनीथिंग। ओके, दिस inhaled air, their temperature get maintained in this nasal canal. Then next point, this olfactory region, this layer of olfactory region, ये जो olfactory region का जो layer है बच्चों, it is moist. Okay, it is moist one, covered with the mucus, secreted by the mucus secreting glands, mucus gland. The layer of this region, nasal canal, see here, ये जो nasal canal वाला जो region है, okay, साथ ही साथ ये जो रेस्पिरेटरी का भी जो रीजन है, यहाँ पर हमें सुडोस्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग नजर आती है, जो यहाँ ट्रकिया में भी होती है। कहाँ होती है? ट्रकिया में भी होती है, जो इस कंप्लीट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मॉइस्ट बनाता है। क्या बनाता है? मॉइस्ट बनाता है। साथ ही साथ मॉइस्ट कैसे बनता है? म्यूकस सीक्रेट करने वाले सुडोस्ट्रैटिफाइड, कौन से? सुडोस्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग है। ये ओके, ये क्या करते हैं? ओके, ये डस्ट पार्टिकल को प्रोपेल करते हैं और हमारे नोज के जरिए उसे बाहर निकालने का काम है। ओके, चाहे वो इस नेसल कैनाल में हो ये लेयर्स, या फिर इस ट्रकिया में हो, इनमें रहने वाले सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू
they propel the dust particles or other particles with the mucus to the outside the body, isn't it? जो भी बलगम वगैरह जो निकलता है, म्यूकस जो निकलता है, वो इन्हीं की वजह से। Then this mucus, this glandular goblet glands, okay, columnar epithelial tissue, goblet gland, mucus secreting glands, उनके भी यहाँ पर लेयर होते हैं। मीन्स यहाँ पर ट्रकिया और ये जो नेसल चैम्बर है, नेसल कैनल है, इनमें इस तरह के columnar ciliated epithelial tissue भी होते हैं, साथ ही साथ इस तरह से glandular means goblet cells, columnar modified mucus secreting cells भी होते हैं। Then इसे pseudo stratified क्यों कहा गया है? क्योंकि लगते हैं कि 2-3 लेयर होंगे मगर रहते हैं सिंगल ही, ठीक है, इसीलिए कहा गया है। सी नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट, okay, see that is the olfactory region. About this olfactory region, no doubt their membranes are covered with the neurosensory epithelial tissue. इस olfactory region पर न्यूरोसेंसरी एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है, उसे हम स्निडर मेम्ब्रेन कहते हैं। Okay, the neurosensory epithelial tissue that present in this olfactory region, what they do? They receive the sense of olfaction, the sense of different particles for smell, sense of smell they receive. क्या करते हैं ये? यस, इस एयर के जरिए जो भी केमिकल मटेरियल होगा, फूड आइटम्स होंगे, उनके जो भी ऑस्मोसोम्स होंगे, ओके, सेंटेड पार्टिकल्स होंगे, उन सभी को यहाँ पर जो न्यूरोसेक्रेटरी रीजन होता है, न्यूरोसेंसरी, सॉरी, द न्यूरोसेंसरी रीजन जो होता है उसे बेसलर मेम्ब्रेन हम कहेंगे, सॉरी स्निडर मेम्ब्रेन हम कहेंगे। और इस स्निडर मेम्ब्रेन के साथ में कौन सी सेंसरी न्यूरॉन अटैच रहती है? दैट इज ऑल्फैक्टरी नर्व। कौन सी नर्व? ऑल्फैक्टरी नर्व। इस न्यूरोसेंसरी रीजन से ऑल्फैक्टरी नर्व्स के न्यूरॉन्स इनर्वेट होते हैं एंड दे रिसीव द सेंस ऑफ स्मेल। ये किसे रिसीव करते हैं? सेंस ऑफ स्मेल को रिसीव करते हैं। So this is the function of our nasal canal and the nose. ये nasal canal और nose का function। अगला point, this oral cavity, this one is, what is this? ये क्या है बच्चों? It is the oral cavity. This oral cavity, it is get separated from this nasal canal by the palate bone. कौन सी bone? Palate bone. So बच्चों, this is the palate. What is this? Palate. ये क्या है बच्चों? This part is the palate. The palate bone in human being, it is a complex palate. ये क्या है? हमारी किस तरह की palate bone होती है? Complex palate. दो palate bone होते हैं, isn't it? They get fused with this, their associated different bones like maxilla, okay? And after their fusion, maxilla, ethmoid and what is that? पैलेट बोन, इनका फ्यूजन होकर हमारी कॉम्प्लेक्स पैलेट फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? कॉम्प्लेक्स पैलेट। देन दिस पैलेट बोन इट सेपरेट नेसल कैनाल फ्रॉम ओरल कैनाल और ओरल कैविटी, इन दोनों को ये सेपरेट करती है। अब हमारी जो पैलेट है, इस पैलेट को हम दो पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। द हार्ड पैलेट दैट इज प्रेजेंट इन एंटीरियर पोर्शन। हमारे पैलेट का जो एंटीरियर पोर्शन है वो कैसा होता है? हार्ड पैलेट, ओके। टंग से आप टच कीजिए एंटीरियर पार्ट को, वो आपको ऐसे लगेगा हार्ड लगेगा। देन पोस्टीरियर रीजन को देखिए कैसे लगेगा? स्मूथ लगेगा, ओके। सो दिस वन इज, यहाँ पर जो पैलेट होगी दैट इज द हार्ड पैलेट, और जो पोस्टीरियर रीजन पे होगी दैट इज द सॉफ्ट पैलेट। और इस सॉफ्ट पैलेट के पोस्टीरियर रीजन पर एक फ्लैप होती है, ओके, डायरेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उस फ्लैप को हम कहते हैं, दैट इज नोन एज बुला। क्या कहते हैं? बुला। ये क्या करती है? ये फ्लैप क्या करती है? व्हेनेवर वी इंगल्फ द फूड पार्टिकल्स और फूड आइटम्स,
जब हम यहाँ पर जब हम इंगल्फ करते हैं, whenever we engulf the food material, जब हम फूड मटेरियल को इंगल्फ करते हैं उस समय इस इंगल्फ की वजह से, ओके, जब हम सैलो करेंगे, इंगल्फ करेंगे फूड मटेरियल को, उस समय ये जो खुला है इट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड क्लोज द इंटरनल लेयर्स को क्लोज कर देता है। और उसी समय सैलाइन के समय ये जो ग्लॉटिस है, व्हाट इज दिस, द ओपनिंग ऑफ दिस लैरिंग्स इज नोन एज ग्लॉटिस। ओके, द ओपनिंग ऑफ windpipe is known as glottis, while the opening of esophagus is known as gullet. Esophagus, it is dorsally present. Okay, see यहाँ पर इस तरह के जो ओपनिंग है, ये सामने वाली ओपनिंग ये ग्लॉटिस होगी, और मींस वेंट्रल ओपनिंग इसे हम ग्लॉटिस कहेंगे, और जो डॉर्सल ओपनिंग है, डॉर्सल ओपनिंग इसे हम gullet कहेंगे। Gullet opens into esophagus, that is the food pipe, and glottis opens into the windpipe, that is the trachea, or we can say the larynx and the trachea. Then, after swallowing the food particles, then the two different flaps. One flap, that is the uvula, it closes the air coming from internal layers into the pharynx. And second one, epiglottis, कौन सा बच्चों? epiglottis, that is present above the larynx. larynx के ऊपर रहने वाला जो epiglottis होता है, जब हम फूड मटेरियल स्वैलो करते हैं तो uvula जो है वो अपवर्ड और epiglottis डाउनवर्ड मूव होकर एयर कंडक्शन को रोक देते हैं। ओके, isn't it? एयर कंडक्शन को रोक देते हैं। इसी वजह से जब हम कोई चीज इंगल्फ करते हैं उस समय सांस नहीं ले सकते। ट्राई कर देखिए, स्वैलो और एयर इनहेल करना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस समय स्वैलोइंग के समय uvula इंटरनल लेयर्स को क्लोज करता है और एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को क्लोज करता है, यानी एयर कंडक्शन स्टॉप हो जाता है स्वैलोइंग के समय। इस वजह से स्वैलोइंग के समय हम एयर इनहेल नहीं कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट, that is pharynx. The air from nasal canal, the air from this nasal canal, okay, it enter into the inhaled air from this nasal chamber or nasal canal, it enter into pharynx through the internal layers, through the small opening known as the internal layers. internal layers के जरिए नेसल कैनाल की एयर pharynx रीजन में आती है। कहाँ आती है? pharynx. The next portion is pharynx. What is pharynx? Pharynx, it is known as dwell organ. pharynx को हम क्या कहते हैं? pharynx is known as dwell organ. क्या कहते हैं pharynx को हम? dwell organ. Why it is known as dwell organ? Because it participates in two different systems. One is our digestive system, second one is respiratory system. Yes, it is the common path for food as well as air. Air और food conduction का ये common path है, इसीलिए pharynx को हम क्या कहते हैं? इसीलिए pharynx को हम कहते हैं that is dwell organ. So write down dwell organ. This pharynx it is divided into, इसे हम 3 different zone में डिवाइड करते हैं। ओके, इसे हम 3 different zone में डिवाइड करते हैं। कौन से 3 different zone है बच्चों? राइट डाउन, सी, ध्यान दीजिए, सी है, यह है इंटरनल लेयर्स। दिस वन इज द ग्लॉटिस पार्ट। ओके, दिस वन इज ये ग्लॉटिस। Okay, then this one is part of uvula. Oral canal
then nasal canal, okay, then this part is the esophagus. Now, pharynx, it is divided into three different zones. इसे हम three different zone में divide करते हैं. This one is the internal nair. ये कौन सा region है? Internal nair region है. So, कैसे? See here, this portion is the pharynx. ये complete जो black dotted portion हमने draw किया है, ये complete pharynx का region है. Okay, so the region of pharynx, which is in contact with this oral canal, this portion is known as oropharynx. इसे हम क्या कहते हैं? Oropharynx. Oropharynx. Then next one, the region of this pharynx which is in contact with, किसके contact में? Which is in contact with this region, कौन सा? Yes, the nasal canal opening into pharynx. इसे हम कहेंगे nasopharynx. Nasopharynx. Okay, nasopharynx. अगला point. The region of pharynx which is in a connection with this opening of glottis of windpipe, इसे हम कहेंगे, यहाँ पर larynx portion होता है. क्या होता है? sound box, larynx. So इस region को हम कहेंगे laryngopharynx. Laryngopharynx region. Then अगला पॉइंट, सो ये ओरोफैरिंक्स जो है, यहाँ से इंगल्फ किया हुआ जो खाना है वो इसोफेगस में डायरेक्टली इंटर होता है. ओके, और इसोफेगस को किसी भी तरह का फ्लैप नहीं होता. फ्लैप जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए होती है. ओके, गेटिंग दिस पॉइंट? अगला पॉइंट, सो नेक्स्ट पोर्शन इज आफ्टर पैरिंग्स. पैरिंग्स के बाद अगला पोर्शन है larynx. The conduction of air from pharynx into the larynx is taking place through the small opening. That small opening is known as glottis. उस small opening को हम क्या कहते हैं? Glottis. और इस glottis का जो region होता है वहां से ही हमारा sound box, okay, sound box, that is the larynx region, वहीं पर रहता है. Okay, so next point is the structure of larynx or the structure of sound box. Write down the structure of sound box or larynx. It is important one. Write down. इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं larynx पर. कौन से क्वेश्चन से देखते हैं? See. So, write down the structure of the larynx. Okay, यहाँ ड्रॉ किया जाएगा. See here. This one is the hide bone. This bone, इस bone को हम कहेंगे hide bone. Hide bone के बारे में बहुत ही important चीज है. हमारे स्केलेटन में एक ऐसा बोन है जो किसी भी और बोन के आर्टिकुलेशन में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, किसी से फ्यूज नहीं है, किसी और बोन के साथ फ्यूज नहीं, आर्टिकुलेटेड नहीं है, वो है हाइड बोन. इस हाइड बोन को ही हमारी टंग आर्टिकुलेट होती है, टंग. देन नेक्स्ट पार्ट, थायराइड. Thyroid cartilage, write down. Thyroid cartilage. This one is thyroid cartilage. Thyroid cartilage, write down. We are drawing here. We are speaking about the glottis. Sorry, the part of larynx, that is the sound box. हम sound box के बारे में बता रहे हैं आप सभी को.
Write down. Then next part is cricoid cartilage. Cricoid cartilage. Cricoid cartilage. Called thyroidal cartilage ligament. Ligament. Okay. Hide bone और thyroid cartilage. Okay. इन दोनों के बीच में cricoid cartilage. ओके देन यहाँ जो लिगामेंट होगा बच्चों इसे हम थायरॉइडल क्रिकॉइड लिगामेंट कहेंगे. ओके लिगामेंट. अगला पॉइंट इनके बीच से पास होता है लैरिंक्स. लैरिंक्स के बाद होता है दैट इज द ट्रकिया. Now, see here. This is the structure of the larynx. इसे larynx का structure कहेंगे. Okay. This larynx structure के larynx में आपको नजर आएगा. Okay. This larynx it is formed by different cartilage. The number of cartilage and types of the cartilage. See here. On the basis of the type of cartilage, only two types of cartilage they form the structure of larynx. हमारा जो sound box है ये different cartilage से बना हुआ एक structure है. Okay. किससे बना है हमारा larynx? different types के yes number of cartilage से बना हुआ है. Okay. So ये कितने हैं total? किसी रेफरेंस बुक में कहा गया है 6 नंबर ऑफ कार्टिलेज, किसी में कहा है 9 नंबर ऑफ कार्टिलेज. ठीक है हम आपको बताएंगे व्हाट इज दैट थिंग. ठीक है सी हियर. सो द स्मॉल ओपनिंग दैट ओपन्स इनटू दिस लैरिंक्स. ये जो लैरिंक्स का पोर्शन है दिस वन इज द लैरिंक्स पोर्शन. इसे क्या कहेंगे? लैरिंक्स. द पोर्शन ऑफ द लैरिंक्स. सो ये जो लैरिंक्स का जो पोर्शन है जिसमें एयर एंटर होती है, जिस स्मॉल ओपनिंग से ओपन होती है उसे हम कहेंगे ग्लॉटिस. क्या कहेंगे? Glottis. Glottis part. Now, after this, see here. What are the different cartilage, types of cartilage, number of cartilage that form the larynx? कौन-कौन है? लिख लीजिए. सिर्फ दो तरह के यहाँ पर cartilage है. Okay? So यहाँ पर हम draw करते हैं क्योंकि इसके आगे हम discuss तो next point पे करने वाले हैं. ठीक है? So this part is a trachea. What is this? Trachea. ठीक है. So on the basis of number of functional basic origin type of cartilage. ठीक है. On the basis of origin and types of cartilage, only two types of cartilage participate here in the formation of sound box, covering the sound box. Larynx. Larynx ये क्या है? ये एक ऐसा पोर्शन है जो डिफरेंट कार्टिलेज के द्वारा कॉम्पैक्ट किया जाता है, प्रोटेक्टेड किया जाता है. ठीक है. सो कौन से? दो ही तरह के कार्टिलेज है. एक है हाइलिन कार्टिलेज और दूसरा है इलास्टिक कार्टिलेज. Hyaline cartilage and elastic cartilage. Only on the basis of type of cartilage, only two types of cartilage they form larynx. Then on the basis of इसके बेसिस पर ये था उनके ओरिजिन के बेसिस पर कौन-कौन से है. ठीक है. Then कितने नंबर्स होंगे और हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स होंगे. Okay, on the basis of their functional and original base. Functional and origin base. ठीक है. अब कौन-कौन से टाइप्स है? टाइप्स कौन-कौन से हैं? नंबर 1
यस, थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज कितना है? एक ही है। थायराइड कार्टिलेज मतलब हाइलिन कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज किस कैटेगरी में आता है? हाइलिन कार्टिलेज में। बच्चों एक छोटा सा पॉइंट, हमारे जो दो दो एक्सटर्नल लेयर्स है, हमें यहाँ पर याद आया हाइलिन कार्टिलेज, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। सो हमारे जो एक्सटर्नल लेयर्स है, ओके, जो नेसल कैनाल के भीतर एक सेप्टम है, उसे हम नेसल सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? नेसल सेप्टम। और इस नेसल सेप्टम को डिवाइड करने वाला जो कार्टिलेज है, ये नेसल सेप्टम को बनाने वाला जो कार्टिलेज है, जो दो डिफरेंट कैनाल को बना रहा है, ठीक है, दो डिफरेंट एक्सटर्नल लेयर्स को बना रहा है, उस सेप्टम का नाम है, उस नेसल सेप्टम को हम कहते हैं मेसेंथॉइड। मेसेंथॉइड कार्टिलेज क्या कहेंगे उसे? मेसेंथॉइड कार्टिलेज। और ये किस तरह से, किस टाइप का कार्टिलेज है? ये हाइलिन कार्टिलेज है। कौन सा कार्टिलेज है? हाइलिन कार्टिलेज है। अगला पॉइंट, सो आइए यहां पर लैरिंक्स कौन कौन से टाइप्स के कार्टिलेज से बना है। पहला थायराइड कार्टिलेज, ये किस कैटेगरी में आता है? इट कम्स इन हाइलिन कार्टिलेज। देन सेकेंड वन, ये कितने होते हैं? सिर्फ एक ही है। देन सेकेंड वन, क्रिकोइड कार्टिलेज। कितना बच्चों? क्रिकोइड कार्टिलेज, ये कितने होते हैं? ये भी सिंगल होता है। इसके अलावा और कौन से कार्टिलेज हैं? अगर हम इसके बैक साइड में देखते हैं, इसे अगर हम बैक साइड से अगर ड्रॉ करते हैं, सियर मींस इसका अगर हम डॉर्सल पोर्शन अगर ड्रॉ करते हैं, तो सियर किस तरह से दिखाई देगा? यहां हम बनाते हैं। कैसे बनेगा? पिरामिडल, सियर, ये जो पोर्शन रहेगा दैट इज ब्लैकेट पोर्शन, ये रहेगा क्रिकोइड कार्टिलेज। कौन सा? क्रिकोइड कार्टिलेज। यहां पर रहेगा एरेटिनॉइड कार्टिलेज। ओके, हाँ, राइट डाउन। एरेटिनॉइड कार्टिलेज। देन नेक्स्ट वन, एरेटिनॉइड कार्टिलेज। देन यहां पर ये जो फ्लैप होगी, यहां पर रहेगा एपिग्लॉटिस। ओके, ये स्मॉल जो फ्लैप है, एपिग्लॉटिस की फ्लैप रहेगी यहां पर, सॉरी, इस तरह से। दिस वन इज एपिग्लॉटिस। ओके, ये एपिग्लॉटिस ओपनिंग को कवर करता है, ठीक है। सियर, एरिटिनॉइड कार्टिलेज। देन ओके, द रॉड शेप कार्टिलेज होते हैं, जिसे हम यूनिफॉर्म कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म कार्टिलेज। यूनिफॉर्म कार्टिलेज, सियर। ओके, हाँ, एरेटिनॉइड कार्टिलेज कितने होते हैं? ये जो है ब्लैक ब्लैक डॉटेड, ये एरेटिनॉइड कार्टिलेज है। ये भी किस कैटेगरी में आते हैं? ये भी आते हैं हाइलिन कार्टिलेज इस कैटेगरी में। एरिटिनॉइड एरिटिनॉइड कार्टिलेज, ये कितने होते हैं? दे आर टू इन नंबर्स, टू इन नंबर्स। देन इसके अलावा यहां पर जो कार्टिलेज है, इसे हम कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी। कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी,
ये किस पार्ट में आता है? ये इलास्टिक कार्टिलेज है, कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी। ये कितने होते हैं? ये 2 नंबर के हैं। कितने हैं? 2 इन नंबर्स। सो कौन कौन से इलास्टिक, हाइलिन वगैरह है ये समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्यूनिफॉर्म इस तरह से ड्रॉ किया है, मगर क्यूनिफॉर्म ये जो फ्लैप है इपीग्लॉटिस, कौन सा ग्लॉटिस? इपीग्लॉटिस। इपी मींस, इपी का मतलब अपॉन, इसके ऊपर जो फ्लैप है ग्लॉटिस को कवर करने वाला, वो होता है इपीग्लॉटिस। किसी किसी बुक में इस इपीग्लॉटिस को और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज को काउंट नहीं किया गया, तो इसका मतलब टोटल 6 नंबर ऑफ कार्टिलेज हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ? 6। कैसे बच्चों? सी, ये सीआर कैसे 6 होंगे? तो कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी, तो एरेटिनोइड कार्टिलेज, एक यूनिफॉर्म कार्टिलेज और एक थायराइड कार्टिलेज। टोटल कितने हो गए? 6। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम यूनिफॉर्म कार्टिलेज को, किसे बच्चों? अगर हम यूनिफॉर्म कार्टिलेज और साथ ही साथ कौन? इपीग्लॉटिस एक ही होता है, और इपीग्लॉटिस इसे अगर मिलाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्टिलेज कितने हो गए? 9। कितने? 9। ओके, 1 2 4 6 8 9। ओके, सो किसी बुक में दिया है हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्टिलेज फॉर्म द लैरिंक्स। ओके, तो कितने टोटल? 9। किसी बुक में दिया है 9। 9 कैसे दिया है? उन्होंने एपिग्लॉटिस और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज को काउंट नहीं किया। समझ में आया? ओके, अगला पॉइंट सीयर, 1 मिनट। अगला पॉइंट, आप सबसे बड़ा कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज है, कौन है साइज में, बट सीयर अब इसमें से इनकम्प्लीट रिंग वाले कार्टिलेज कौन से हैं और कंप्लीट रिंग वाले कार्टिलेज कौन से हैं? सीयर इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखना है ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज होता है ये कंप्लीटली रिंग कार्टिलेज होता है। ओके, सीयर सबसे पहला थायराइड कार्टिलेज, इट इज इनकम्प्लीटली रिंग कार्टिलेज। देखो इनकम्प्लीट है, यहाँ पर थायराइड यहीं पर एंड हो गया, थायराइड कार्टिलेज यहीं पर एंड हो गया, आया है क्या? नहीं। डॉर्सल इट इज इनकम्प्लीट वन। देन नेक्स्ट वन, थायराइड कार्टिलेज के नीचे होता है क्रिकोइड कार्टिलेज, इन दोनों के बीच में लिगामेंट के जरिए फिक्स रहते हैं। ओके, सो दैट इज थायराइडोक्रिकोइडल लिगामेंट। ओके, अगला पॉइंट, ये कंप्लीट क्रिकोइड कार्टिलेज, ये सिग्नेट रिंग कार्टिलेज, सिग्नेट शेप होता है, सिग्नेट रिंग की तरह। ओके, सो ये कंप्लीट रिंग होता है cricoid cartilage. It is the hyaline cartilage which is completely surround the larynx को, ये complete surround करता है completely। अगला पॉइंट, यस नेक्स्ट वन पॉइंट, अगर हम फ्रंट व्यू देखते हैं, वेंट्रल से देखते हैं, तो हमें ये जो कार्टिलेज है एरेटिनोइड कार्टिलेज, यूनिफॉर्म कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी नजर आते हैं क्या? नहीं। सो डॉर्सली देखने के बाद नजर आएंगे। टू पिरामिडल कार्टिलेजिनस पार्ट दैट इज नोन एज एरेटिनोइड कार्टिलेज, और इस एरेटिनोइड कार्टिलेज का एंटीरियर पोर्शन पर इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं, उसे हम कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी कहते हैं। इनका क्या फंक्शन है? ये जो एपिग्लॉटिस है इनकी ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं एरेटिनोइड। साथ ही साथ दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म कार्टिलेज। यूनिफॉर्म कार्टिलेज क्या करता है? ये एक और, ये जो यूनिफॉर्म कार्टिलेज है एक और ये एरेटिनोइड से ज्वाइंट है और दूसरी ओर ये एपिग्लॉटिस से ज्वाइंट, ये आर्टिकुलेटेड है। तो इस तरह से ये भी यूनिफॉर्म कार्टिलेज, इट इज रॉड शेप इलास्टिक कार्टिलेज दैट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस की ओपनिंग को रेगुलेट करने वाले कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी और यूनिफॉर्म कार्टिलेज होते हैं। So on the basis of origin, 2 types of cartilage, hyaline and elastic cartilage. On the basis of number, total reference book में किसी में दिया है 9 कैसे दिया है? यूनिफॉर्म कार्टिलेज 2 in number,
और एपिग्लॉटिस 1। अगर एपिग्लॉटिस और यूनिफॉर्म को कंसीडर नहीं करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्टिलेज हो जाते हैं कितने? 6। इज दैट क्लियर? ओके, अगला पॉइंट बच्चों, अब इसके बाद इस रिकॉइड कार्टिलेज के नीचे का जो पोर्शन है दैट रिमेन कंटिन्यू एज द ट्रकिया, रिमेन कंटिन्यू एज द ट्रकिया। देन इस ट्रकिया की लेंथ लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। और इस ट्रकिया को इनकम्प्लीटली सराउंडेड लगभग 20 हाइलीन सी शेप हाइलीन कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं। सी शेप हाइलीन कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं जो डॉर्सल से इनकम्प्लीट होते हैं। डॉर्सली क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। मगर उस डॉर्सल रीजन में क्या होता है? उस डॉर्सल रीजन में थायरॉइडल मसल्स होते हैं जो उस थायराइड को क्या करना? उसका डायलेशन करना, कंस्ट्रिक्शन करना, ये रेगुलेट करते हैं। समझ में आया? सो दैट इज द पार्ट अप टू द ट्रैकिया। ट्रैकिया का इंटरनल स्ट्रक्चर अभी बाकी है, उसे हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, see you tomorrow.